Packaging of DNA helix. Packaging of DNA helix. Taking the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nanometer means 3.4 angstrom. If the length of DNA is double helix in a typical mammal cell is calculated, simply we multiply the total number of base pairs with the distance between two consecutive base pairs, that is 6.6 into 9 into 3.2 means 2.2 meter. It is a typical simple by multiply. A typical mammalian cell, if the length of double helix, a typical mammalian cell is calculated, simple multiply the total distance. A length greater than that, a length that is far greater than the dimension of typical nucleus. Typical nucleus approximately 10 raised to power minus 6 meter. How such a long polymer packed in a cell in prokaryotes such as E. coli, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered through the cell, the DNA being negatively charged and held with some proteins that have positive charges in the region termed as न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड के रीजन में पॉजिटिवली चार्जेड जुड़े होते हैं जिसके इनके पास हिस्टोन भी नहीं होता. The DNA in nucleoid is organized in large loops held by proteins. In eukaryotes, these organisms is much more complex. There is a set of positively charged basic proteins called histones. हिस्टोन के बेसिक प्रोटीन्स को पॉजिटिव लाइसिन आर्जिनिन के बेसिक प्रोटीन्स एट जो मिलके बने उसे हिस्टोन ओक्टामर कहता है. प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रिसाइड्स विथ चार्ज साइड चेन. जो चार्जेस हैं वो रिसाइड होते हैं साइड चेन पे. चार्जेस रिसाइड्स ऑन साइड चेन. Histones are rich in basic amino acid residues lysine and arginine. Both the amino acid residues carry positive charge in their side chain. Histones are organized to form a unit of 8 molecule called histone octamer. The negatively charged DNA is wrapped around the positive charged histone octamer to form a structure called nucleosome. ये जो स्ट्रक्चर है उसे न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर का कैसे घूम के जो है H1 हिस्टोन, लेकिन ये पार्ट नहीं होता है न्यूक्लियोसोम का. ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं होता है. ये केवल न्यूक्लियोसोम को ही कोर ऑफ हिस्टोन का मॉलिक्यूल कहा जाता है. स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. फिगर 1. Typically nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix. Nucleosome constitute the repeating unit of a structure in a nucleus called chromatin. Nucleosome constitute the repeating units of a structure in a nucleus called chromatin. Thread-like straight colored bodies seen in the nucleus. The nucleosome in chromatin are seen as beads on string structure when viewed under the electron microscope. Theoretically, how many such beads nucleosome do you imagine are present in a mammalian cell? 3 करोड़ 30 लाख और 33 million. The beads on string structure in chromatin is packed to form a chromatin fiber. The beads on string structure in a chromatin is packed to form a chromatin fiber that are further coiled and condensed at a metaphase stage of cell division to form a chromosome. The packaging of chromatin at a higher level requires additional set of proteins that are collectively referred to as non-histone protein. Non-histone chromosomal protein in a typical nucleus. Some region of chromatin are loosely packed acids that are referred to as euchromatin, और जो टाइटली होंगे उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं. The chromatin that is more densely packed and stained dark are called ectomer. Euchromatin is said to be transcriptionally active क्योंकि इससे क्या होता है DNA से RNA बनता है एक्टिव क्रोमेटिन, whereas heterochromatin is inactive क्योंकि DNA से RNA नहीं बनता है. In the search of genetic material,
पहला सर्च जेनेटिक मटेरियल का कहाँ से, पहले तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आएगा, ग्रिफिथ के बाद फिर एमेरी मैकलियोड मैकार्टी आएगा, फिर आएगा हार्थी चेस एक्सपेरिमेंट, फिर आएंगे टेलर एक्सपेरिमेंट, टेलर एंड कलिंग एक्सपेरिमेंट, और एक कोई था, क्या नाम था उनका, नहीं, even through the discovery of nucleus by Miescher, even through the discovery of nucleus किसके द्वारा दिया गया था, मिस्चर द्वारा, मैसर द्वारा देखा गया था। और इसमें क्या बताया गया था कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए इसे न्यूक्लियड कह दिया गया। और ये नहीं निकाल पाए क्योंकि टेक्निकल ग्लिच था, टेक्निकलॉजी वीक थे। एंड देयर आर proportion for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as genetic material took long to be discovered, proven। डीएनए वाला जो बात किया गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बहुत समय बाद पता चला। बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म 1926 the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. Previous discoveries by the Georg Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search for to the chromosomes located in the nucleus of the host cells. But the questions of what molecule, what actually the genetic material had not been answered. या पता नहीं चल पाया जेनेटिक मटेरियल क्या था। क्रोमेटिन तो दिखा, क्रोमोसोम तो दिखा कि डीएनए के अंदर है, लेकिन ये एक्चुअली नहीं बता पाए कि जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, जो पेरेंट्स से ऑफिस में जा रहा है, वो क्या है, वो नहीं पता कर पाए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपको मालूम होगा। उन्होंने चूहे को, माइस को लिया था, चूहे पे क्या लगाया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाले बैक्टीरिया लिए थे, दो, इसके दो स्ट्रेन थे, एक एस स्ट्रेन, एक आर स्ट्रेन। एस वाला स्मूथ था क्योंकि कैप्सूल था, आर वाला स्मूथ नहीं था क्योंकि कैप्सूल नहीं था। आर वाला होस्ट के एंजाइम से नहीं बच सकता था, ये होस्ट के एंजाइम से ये बच सकता था, और आगे जाके ये अपने आप को रिपीट करके होस्ट के बॉडी में अपने पॉपुलेशन को बढ़ाता था, और जिसके कारण ये पैथोजेनिक हो जाता था, पैथोजेनिक हो जाया करता था। पैथोजेनिक तो ये पर 1928 ग्रिफिथ इन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बताया ना, निमोनिया इन्होंने लिया था। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया विटनेस्ड एज अ मिराकुलस क्यों कहा गया, क्योंकि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो एक चीज, कुछ चीज जो आर स्ट्रेन में नहीं थी, वो आर स्ट्रेन में आ गई थी। आगे चलेंगे तो अभी बताया जाएगा। Transform in a bacteria during course of its experiment in a living organism. Bacteria had changed physical form. Yes, physical form उसका बदल गया था। आर स्ट्रेन जब पहले देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था इनका, इन्होंने माइस लिया, बहुत सारे माइस लिए, माइस पे क्या किया इन्होंने, यस निमोनिया डाला, यस स्ट्रेन डाला, और वो मर गया। क्यों मरा, क्योंकि यस स्ट्रेन पैथोजेनिक था, इसके कारण मर गया। आर स्ट्रेन डाला तो वो बच गया, लेकिन जब उन्होंने हीट किल किया, हीट किल को मतलब किसी कटोरी में बैक्टीरिया को लिया, उसे उबाला, गर्म किया, जिसके कारण वो मर गया, ये सिस्टेन मर गया। फिर उसे डाला तो वो नहीं मरा, माइस जिंदा रहा। बैक्टीरिया मार के जब उन्होंने डाला हीट करके, ये सिस्टेन को हीट, पहले तो ये सिस्टेन डाला तो मर गया, ये सिस्टेन को हीट किया फिर डाला तो जिंदा रहे। लेकिन जब ये सिस्टेन को हीट करके फिर उसके साथ आर स्टेन को डाला तब भी माइस मर गया। ये था मिरेकुलस। मिरेकुलस कहने का मतलब जब दोनों से वो नहीं मर रहा था एक एक करके, तो दोनों को साथ में डालने के बाद वो कैसे मर गया। तो इसका पता इससे चला कि कुछ जो ऐसा चीज है जो एस स्ट्रेन का मरने के बाद भी सही सलामत था, जो कि हीट रेजिस्टेंट था, मतलब हीट से उसको कुछ नहीं हुआ, वो ट्रांसफर हो गया आर स्ट्रेन में। और जब आर स्ट्रेन में गया तो आर स्ट्रेन का फिजिकल फॉर्म बदल गया, आर स्ट्रेन की बॉडी के ऊपर कैप्सूल आ गया। एस स्ट्रेन तो पड़ा ही रहा, लेकिन आर स्ट्रेन के ऊपर भी कैप्सूल आ गया, जिसके कारण होस्ट की बॉडी में वो मरा नहीं। मरने के ना वजह से उसने जाके उसमें प्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस करने के बाद अपनी पॉपुलेशन बढ़ाया और पैथोजेनिक होकर उसे मार दिया माइस को, ठीक है। और ये सब उसके हार्ट या लंग्स से मिल रहा था माइस के कि इसमें कौन सा स्ट्रेन है। When Streptococcus pneumonia bacteria are grown on a culture plate, some produces smooth sided colonies yes strain, while other produces rough strain। जिनके पास स्मूथ था वो कैप्सूल की वजह से थे, जो रफ थे वो ना कैप्सूल होने की वजह से थे। दिस इज बिकॉज अ स्ट्रेन में हैविंग द म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट, म्यूकस की पॉलीसेक्राइड कोट, म्यूकस की पॉलीसेक्राइड कोट, म्यूकस की पॉलीसेक्राइड कोट थी जिसे कैप्सूल कहते हैं।
म्यूकस की पॉलीसेकेराइड जो कि कैप्सूल कहते हैं, विथ आर स्ट्रेन डज नॉट, माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन विरुलेंट, मतलब इसके लिए पैथोजेनिक था। डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो गया निमोनिया से, किसको, माइस को, इसका मतलब ये है। बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया, ये निमोनिया नहीं कर पाया क्योंकि ये तो पैथोजेनिक ही नहीं था। ये स्ट्रेन डाला इन्फेक्ट इनटू माइस, माइस डाई हो गया। आज स्ट्रेन डाला इन्फेक्ट कराया लेकिन माइस जिंदा रहा। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाई हीट किल देम, ग्रिफिथ ने उसको क्या क्या हीट किल किया। उसके बाद he observed that heat killed S strain bacteria infected into mice did not kill them, मतलब उसने किल नहीं किया हीट किल करने का। फिर ही टेक एस स्ट्रेन इन्फेक्ट माइस लाइफ था, लेकिन एस स्ट्रेन लिया हीट किल करके। कैसा, हीट किल करके लिया, हीट किल करके लिया। आर स्ट्रेन को लाइव लिया, उसके बाद माइस डाई हो गया। ये था मेरेकुलस, यहाँ पे जो लिखा मेरेकुलस, मेरेकुलस यहाँ पे मेरेकुलस हुआ। Injected a mixture of heat killed assistant to R-strain bacteria. The mice died. ये था miraculous. Moreover, he recovered live S-strain bacteria from the dead mice. कहाँ से, हार्ट से या तो लंग्स से, हार्ट से या तो लंग्स से, कहाँ से रिकॉर्ड किया गया था, ये देखो लिखा ना इसमें, he recovered living SS bacteria from the dead mice. He concluded that the R he concluded the He concluded that the R-strain bacteria had somehow been transferred by the heat-killed S-strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat-killed S-strain and enabled the R-strain to synthesize smooth polysaccharide coat and become virulent. पता चला कुछ जो S-strain में था वो ट्रांसफर हो गया R-strain में चला गया, जिसके कारण ये virulent हो गया। How the biomolecular nature of genetic material was not defined, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चला कि ये जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हुआ, और ना हमें इसका बायोकेमिकल नेचर। बायोलॉजिकल नेचर तो हमें पता है, ये केमिकल लिखा, ये याद रखना। बायोकेमिकल नेचर हमें नहीं पता था, बायोलॉजिकल नेचर तो पता था कि ये मार दिया। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसे दिया था 1944 तक। तीन साइंटिस्ट एवेरी मैकलियोड मैकार्टी, किन्होंने, एवेरी मैकलियोड मैकार्टी, एवेरी मैकलियोड मैकार्टी 93 1944, तीन दो बार है, इसे पता चलेगा तीन साइंटिस्ट थे। तीन देखो इसमें दिया, तीन से पता चलेगा तीन साइंटिस्ट, एवेरी मैकलियोड मैकार्टी, एवेरी मैकलियोड मैकार्टी। Prior the words of Oswald Avery, called Avery McLeod McCarthy. The genetic material was thought to be protein. उस समय ये सोचा जा रहा था कि जो प्रोटीन है ये जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं था। They worked to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफर मटेरियल था उसके बारे में सोच रहे थे कि क्या था जो इसके कारण ये ट्रांसफर हुआ। They purified biochemical proteins, DNA, RNA, etc. from the heat-killed S-strain cells to see which ones could transform live R cells into S cell. They discovered that DNA alone from S-strain caused R bacteria become transformed. इन्होंने कहा कि जो DNA था, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, पहले DNA डाला, फिर RNA डाला, प्रोटीज डाला, तो प्रोटीज जब डाला तब भी मूस मर गया। इन्होंने आरएनएस डाला तब भी मूस मर गया। जब डीएनए डाला, जो कि डीएनए को काटने वाला था, जिसने डीएनए को काट दिया, जिसके कारण मूस नहीं मरा, माइस नहीं मरा, वो सरवाइव कर गया। तो इससे ये पता चला कि डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। ये नहीं पता चला कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इससे ये पता चला डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट में बस एक ही चीज बताई गई है कि डीएनए एक ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, जो कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमें पता नहीं चला था कि इसका बायोकेमिकल नेचर क्या। इसका बायोकेमिकल नेचर ये है कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, द अनइक्विवोकल प्रूफ। कैसा प्रूफ? अनइक्विवोकल प्रूफ, इसका मतलब होता है जिसपे कोई शंका ना हो, बिना शंका की जो प्रूफ मिली थी वो किसके द्वारा? हार्थी एंड चेस द्वारा मिली थी। कब मिली थी? हार्थी और चेस द्वारा 1952 में मिली थी। 1952, दो साइंटिस्ट, 52 से देखो दो लिखा तो दो साइंटिस्ट हार्थी और चेस
unequivocal Bauman, दो साइंटिस्ट हार्सी और चेस ने दिया था. The proved that DNA is a genetic material comes from the experiment Alfred Hershey and Martha Chase. They worked with the various that infected bacteria called bacteriophages. जो बैक्टीरिया को फेस करे उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं. बैक्टीरियोफेज समझ के तुम बैक्टीरिया ना समझना, ये वायरस होते हैं. जहाँ पे भी बैक्टीरियोफेजिस, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, फेजिस का मतलब इन्फेक्टेड करने वाला, तो इसे पता चलेगा वायरस. The bacteriophage attaches to the bacteria and genetic material enters the bacterial से. जब ये वायरस बैक्टीरिया पे अटैच हुए उसके बाद इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल इंटर कर दिया. मान लीजिए ये वायरस है, इसने इस पर टच किया, मान लीजिए नीडल उसकी जेनेटिक मटेरियल, तो क्या करेगा, नीडल को ऐसे सीधे डाल देगा. यही हो गया इंटर करना. तीन चीज थी, ए बी सी. ए से अफेक्ट करना, बी से ब्लाइंडिंग करना, सी से सेंट्रीफिकेशन करना. ए से अफेक्ट करना, बी से ब्लाइंडिंग करना, सी से सेंट्रीफिकेशन. अफेक्ट का मतलब वायरस का आके टच करना, अफेक्शन हो गया. वायरस का आके टच करना, इन्फेक्शन हो गया. वायरस का आके बॉडी पे बैक्टीरिया के टच कर देना, ये हो गया इन्फेक्शन. ब्लाइंडिंग क्या है, इनका मिक्स होके इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाना. मिक्स होके इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाना, ब्लाइंडिंग है. अफेक्शन क्या है, टच करना. ब्लाइंडिंग क्या है, ये नीडल का अंदर चला जाना. सेंट्रीफिकेशन क्या है, इसे ऐसे घुमा के इसको अलग कर देना, नीडल का इसके अंदर रह जाना. नीडल का यहाँ अंदर रह जाना, पेंसिल का गायब हो जाना, नीडल का अंदर रह जाना. यही है इसका एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक मटेरियल हार्सी और मार्था चेस वाला. हार्सी एंड मार्था चेस, बस इसमें 3 चीज करना था. 3 इन्होंने प्रोसेस किया. पहला था अफेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफिकेशन. अफेक्शन का मतलब टच करना, ब्लेंडिंग का मतलब नीडल का उसके अंदर डाल देना, मतलब वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल देना. सेंट्रीफिकेशन का मतलब क्या था, घुमा देना. क्या करना, सेंट्रीफ्यूगेट कर देना, इसकी बॉडी से अलग कर देना. ठीक है. The bacteriophage attaches to the bacteria. The genetic material enters into the bacterial cell. The bacteria cells create as a cell genetic material as if you want, so on. The subsequent 12 measures from virus principal Hartley and Chase work to discover whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria. ठीक है. They grow some viruses on a medium. इन्होंने वायरसेस को मीडियम में ग्रोथ किया. उस मीडियम का नाम था NH4Cl. सॉरी, ये मीडियम का नाम NH4Cl नहीं है. इन्होंने ग्रो किया. डैट कंटेंट कोई भी मीडियम था, लेकिन इन्होंने 2 चीजों लिया था. इन्होंने प्रोटीन के ऊपर रखने के लिए कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए मटेरियल. तो प्रोटीन में होता है सल्फर, डीएनए में सल्फर नहीं होता, इसलिए ने सल्फर को क्या किया, रेडियो एक्टिव. सल्फर कैसा, यस से लिखा जाता है. 5 भी हम यस की, सल्फर को हम यस की तरह लिखते हैं, और 35 को भी हम 5 को भी ऐसे लिखते हैं. तो सल्फर का रेडियो एक्टिव मान लेंगे हम, याद रहेगा हमें 35. सल्फर का 35, फॉस्फोरस का 32. इन्होंने फॉस्फोरस को लिया एज अ रेडियो एक्टिव, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है. और सल्फर को लिया प्रोटीन एज अ, क्योंकि प्रोटीन होता है. अब उन्होंने सर्टिफिकेट किया, तो एक जो टनल, क्या कहते हैं उसे, टेस्ट ट्यूब या कुछ टेस्ट ट्यूब जैसा जो भी था, ऊपर वाले को सुपरनेटेड कहते हैं. जो टायरेगा ऊपर उसे सुपरनेटेड, नीचे वाला जो ये पोर्शन रहेगा, मान लीजिए डिब्बा है, एक डिब्बे के ऊपर जो डिब्बे में पानी भरा है, पानी के ऊपर जो सतह पे रहेगा उसे सुपरनेटेड पोर्शन कहेंगे. और डिब्बे के नीचे वाले पोर्शन में, मान लीजिए ये पूरा डिब्बा हमारा, ये पूरा डिब्बा है, ऐसे डिब्बा है. इस डिब्बे के नीचे वाले पोर्शन में ऐसे पानी पूरा भरा है ऊपर तक, तो जो ऊपर पोर्शन रहेगा उसे सुपरनेटेड पोर्शन में कहेंगे, जो नीचे रहेगा उसे पैलेट पोर्शन में कहेंगे. तो जो भी पैलेट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया भी है, इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे है, ये देखिए इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे, और इसे सुपरनेटेड, इसे पैलेट कहेंगे. तो पैलेट पोर्शन में जो भी चीज जाएगा एज अ, क्योंकि पैलेट पे तो वो भी है हमारा इकोलाई बैक्टीरिया, और इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर अगर वो चला गया तो समझ लीजिए कि वही है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक मटेरियल वही है. तो जब डाला गया तो डीएनए के ऊपरी, वो टेस्ट ट्यूब के ऊपरी सतह पे सुपरनेटेड पे क्या मिला, हमें मिला प्रोटीन, रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिला. नीचे वाले पोर्शन पे हमें बैक्टीरिया मिला, और वो थायमिडी वो मिला, फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. तो इसे पता चला जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल. देखिए ये वही लिखा है, सब पढ़ दे रहा हूँ एक बार, यहाँ पे सुनिएगा.
Similarly, viruses grow on radioactive sulfur contain the radioactive portion but do not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. DNA के पास सल्फर नहीं होता है रेडियोएक्टिव DNA प्रोटीन बट डू नॉट हैव रेडियोएक्टिव सबमिट। सही है, अलग लिया गया। सल्फर ही क्यों लिया गया? सल्फर ना लेते हैं हम तो हो सकता था डीएनए में वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, डीएनए में भी वो चीज़ हो सकता था, इसलिए हमने सल्फर को ही लिया, क्योंकि सल्फर हमारे उसमें नहीं पाया जाता है डीएनए में। रेडियोएक्टिव फेजेस में अलाउड टू अटैच ऑन इकोलाई बैक्टीरिया। अटैच करना मतलब अफेक्शन। E. coli then the infection binding the viral coat were removed from the bacteria by affecting the blender. कोट का रिमूव मतलब इसको हटा देना ही ब्लेंडिंग को लिखा है। The virus will separated by the bacteria spinning through the centrifuge. सेपरेट कैसे किएगा? सेंट्रीफ्यूगेट का मतलब घुमा देना, ज़्यादा तेज घुमा देना। ये देखो, यह है अफेक्शन, आके जुड़ जाना। यहाँ देखो ब्लेंडिंग, डीएनए का इसके अंदर आ जाना, और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, डीएनए का अंदर चला जाना, बैक्टीरिया का अलग हो जाना। ठीक है। सुपरनेटेड पैलेट वाला तो आपको बता दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन foregoing discussions, it is clear that the debate between proteins versus DNA as a genetic material was unequivocally resolved from the Hershey-Chase experiment. It becomes an stabilized fact that DNA acted as a genetic material. However, it subsequently become clear that in some viruses, RNA is genetic material. For example, tobacco mosaic viruses, QB bacteriophage, etc. QB bacteriophage, टोबैको मोसेक वायरस और बैक्टीरियोफेज, ये दो नाम है जिनके ऊपर मैं कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम से टोबैको मोसेक और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, जो कि क्या है? एक वायरस है, ये वायरस है और ये एक वायरस है, टोबैको मोसेक वायरस और एक क्यूबी बैक्टीरियोफेज। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? आरएनए होता है। अच्छा, टू द सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज predominant genetic material, where RNA performs dynamic functions of messenger and adapter, has to be found from the differences between chemical structures of two nucleic acid of molecule. इसका मतलब यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डीएनए ही पहले से डोमिनेंसी शो कर रहा है जेनेटिक मटेरियल के लिए, और आरएनए बहुत सारे परफॉर्म डायनेमिक मतलब डिफरेंट सारे फंक्शन शो करता है। जैसे ये मैसेजेस को भी रखता है, ये अडॉप्ट भी करता है, ये इवोल्यूशन में भी आता है, और इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा म्यूटेशन भी होता है। आगे पढ़ेंगे तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, ये ऐसा क्यों हुआ, तो हम पहले से जानते हैं कि न्यूक्लिक आरएनए के दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, लेकिन डीएनए के दूसरे कार्बन पर केवल हाइड्रोजन होता है, जिसके कारण आरएनए क्या होता है? ज़्यादा एक्टिव हो गया, एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया। फिर बात करते हैं मिथाइल ग्रुप का जुड़ जाना, यूरेसिल की जगह पे 5 मिथाइल यूरेसिल, जिससे थाइमिन बन जाता है, जिसके कारण उस स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है। यही सब है। कैन यू रिकॉल द 2 केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए और आरएनए, जो मैंने अभी आपको बता दिया। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria. जेनेटिक मटेरियल होने के लिए मस्ट है कि वो फुलफिल करे ये क्राइटेरियाज को। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, तो डीएनए आरएनए दोनों रेप्लिका जनरेट करते हैं। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, तो केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तरह से डीएनए स्टेबल है, लेकिन आरएनए कम स्टेबल है लेकिन कम है। इट शुड बी प्रोवाइडेड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, तो ये काम डीएनए कर रहा है, इसीलिए इसकी प्रीडोमिनेंट है, और आरएनए की कम है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, कम म्यूटेशन कम चेंजेस दिखाएगा, क्योंकि ये जल्दी से रिएक्ट नहीं कर ले रहा है, आरएनए कर लेता है। एक और कारण है प्रूफ रीडिंग होती है इसके पास, आगे पढ़ेंगे। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स में भी इसे शो करना जरूरी होता है। ठीक है, अगला, इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब एडेनिन से थाइमिन जुड़ेगा, थाइमिन से एडेनिन जुड़ेगा, ग्वानोसिन से साइटोसिन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, साइटोसिन से ग्वानोसिन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, एडेनिन से थाइमिन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से।
Both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplications, direct to अपने duplicate बना सकते हैं. The other molecule in the living system such as protein fail to fulfill the first criteria, replication. प्रोटीन अपना रेप्लिकेशन खुद नहीं कर सकता है. The genetic material should be stable enough not to change with different stages of life साइकिल एजेस और फिर चेंज इन फिजियोलॉजी. हाँ, ये भी बात सही. मान लीजिए किसी का जेनेटिक मटेरियल है, बढ़ती उम्र के साथ बदल जाए. पहले मनुष्य दिख रहे थे, फिर कुत्ता दिखने लगे, फिर बिल्ली, फिर सुअर. ऐसे ऐसे नहीं होता है. जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल रहना चाहिए लाइफ साइकिल के अलग अलग एजेस और स्टेजेस पे. नहीं तो पता चले पहले पेड़ पेड़ दिख रहे थे, फिर बड़े आदि मानव हो गए, आदि मानव से वो बड़े बड़े जानवर बन गए. तो ये सब नहीं चाहिए. स्टेबल मॉलिक्यूल चाहिए. द ऑर्गेनिज्म स्टेबिलिटी एज वंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी इविडेंट. यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फिक्स रहे. इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ दैट हीट which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. मीन्स हीट वो प्रॉपर्टी नहीं डिलीट कर पाता है. हीट की वजह से वो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं जाती है कि वो खराब हो जाती है. इज नाउ can easily be explained in light of DNA that the two strands being complementary if separated by heating comes together when appropriate conditions are provided. ये भी बात सही है. appropriate condition provide की जाए तो heating से भी together further ना हो. लेकिन further to a presents every nucleotide in RNA is reactive group to make RNA labeled easily degradable. RNA is also now known to be कैटालिट हेंस रिएक्टिव. इसे कैटालिट रिएक्टिव क्यों कहा गया? क्योंकि हीट पे ये रिएक्ट कर जाता है, बदल जाएगा. फिर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन कंपेयर्ड टू आरएनए. देयर इज अमंग टू न्यूक्लिकेशन डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल. डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल. In fact, the presence of thymine at the uracil also confer additional stability to DNA. Detailed discussion about the requires understanding the process of repair of DNA, and you will be study these process in higher classes. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to DNA. Detailed discussion about the required understanding of the process of repair in DNA, and you will study these process in higher classes. आगे की उच्चतम क्लासेस में आप पढ़ेंगे MBBS की कॉलेज में. Both DNA and RNA are able to mutate. In fact, RNA being unstable mutate at faster rate. ये तो पहले ही आपको पता चल गया था. Consequently, viruses having RNA genome and heavier short lifespan mutate and evolve faster as compared to all of the other organisms. RNA can directly code for the synthesis of protein, hence can easily express the characters. बिल्कुल सही बात है. डीएनए से करने के लिए फिर हमें आरएनए बनाना पड़ेगा. आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा. However, the dependent on RNA for synthesis of protein. सही बात है. ये भी सेंट्रल डोगमा भी कहता है. पहले डीएनए बनेगा, फिर प्रोटीन. डीएनए बनेगा, फिर आरएनए बनेगा, तब प्रोटीन बनेगा. आरएनए है तो डायरेक्ट प्रोटीन बन जाएगा. The protein synthesis mechanism has evolved around the RNA. The discussions indicate that both RNA and DNA can function as genetic material. RNA world. RNA world. From the foregoing discussions, an immediate question becomes evident, which is the first genetic material. How can you say which is the first genetic material? It shall be discussed in detail in the chapter of chemical evolution. वहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो कोई ये सब नहीं था, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था. एज अ प्रोटीन या अदर कुछ था जो इवॉल्व हो के केमिकली डीएनए बना, आरएनए बना पहले, फिर डीएनए बना.
RNA was the first genetic material. There is now enough evidences to suggest the essential life process such as metabolism, translation, splicing, etc. evolved around the RNA. मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लिसिंग। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कटना या बढ़ना। ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना। स्प्लिसिंग का मतलब होता है जब भी हम आरएनए से प्रोटीन बनाने वाले होते हैं तो उसके बाद होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। उसमें क्या होता है कि टीलिंग होती है और कैपिंग होती है। उसके बाद स्प्लिसिंग होती है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन और इंट्रॉन्स के बीच में बहुत सारे इंडियन जेनेटिक कोड के बीच में इंट्रॉन इंट्रॉन सब होते हैं, तो इंट्रॉन्स को अलग कर दिया जाता है, उसी को स्प्लिसिंग कहते हैं। टोल्ड अराउंड द आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल कैटलिस्ट के जैसा भी काम करता है। यहाँ पे भी देखो लिखा था एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कहाँ गया, एक्ट एज अ कैटलिस्ट, हेंस कैटालिटिक एंड रिएक्टिव। ये उसी के वजह से हुआ क्योंकि इसमें OH ग्रुप पे था, OH लगा था, दूसरे पे यूरेसिल लगा है क्योंकि इस पे थायमिन नहीं है, थायमिन जैसा ही नहीं है। Genetic material catalyst. There are some important biochemical reactions in living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzymes. बिल्कुल, but RNA being a catalyst was a reactive। इसमें क्या पता चला, a catalyst by RNA catalyst and not by protein enzyme। वो क्या था, राइबोसोम वाला। राइबोसोम कैसे बनता था, RNA प्लस प्रोटीन मिलके, RNA प्लस 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मिलके बनते थे क्या, राइबोसोम। और ये कोई अलग एंजाइम नहीं कर पाता था, केवल ये कैटालिस्ट करता था, ठीक है, इसीलिए लिखा है। But RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with a chemical modification that makes it more stable. DNA being double standard and having complementary standard further resist changes by evolving process of repair. DNA being double standard and having complementary strands। DNA डबल स्टैंडर्ड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, एंटी पैरेलल होगा, अल्टा strands further resistance changes by evolving a process of repair, replication। ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे रेप्लिकेशन वाला। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा भाई। पूरा एक एक लाइन बताया सब आपको, NCERT खोल के बैठेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, बाय।